Hello, everybody. And as promised, we have come up with another team, Lucknow Super Giants. And हमारे साथ कल थे एक आरसीबी के फैन, तो हमने सोचा आज हम बुलाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के भी एक फैन, सीधा अमेरिका से, जैसे आप उनका नाम पढ़ सकते हैं, मिश्रा जी अमेरिका वाले। नमस्ते मिश्रा जी। भाई राम राम कहते हैं सभी को। लखनऊ जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, लखनऊ जीतेगा। Delvin, I mean, he has set the tone right away. Nothing else matters. It's gonna be Lucknow. बात में दम तो है मिश्रा जी के, कुछ भी कहिए, ये तो बात सही हुई है कि टीम इसी तरह से बनाई है वैसे कि मजा आ जाए देख के, जिसके बारे में बात करेंगे, विस्तार में बात करेंगे मिश्रा जी के साथ। वार्तालाप तो होती रहेंगे हमारे तो, लेकिन बट उससे पहले मिश्रा जी आप ये बताया हमें कि क्या लगता है आपको, आपने टीम तो देखी होगी, थोड़ी सी झलक तो देखी होगी टीम की। आपको क्या लगता है टीम को देख के कि इस बार ऐसा कोई शख्स होगा जो लखनऊ का तख्ता पलट कर दे कि पिछले दोनों सीजन में प्लेऑफ्स तक का ही सफर रहा है, उसके आगे जा नहीं पाए, वो अगली सीढ़ी लेने के लिए ऐसा कोई शख्स आपके मन में जो आपको लगता है इस बार भौकाल मचा दे, सिस्टम फाड़ दे? भाई देखो, ऐसा हमको 30 सेकंड चाहिए। और एक तो रिक्वेस्ट है यार, हम भले अमेरिका में रहते हैं बट हमको अंग्रेजी में कोई वार्तालाप करने के लिए ना बोले, हिंदी में बात करिए। भोजपुरी आज छोड़ दीजिए, अवधि छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपका प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए कैसा है, हमारी नजर ना एक तो प्लेयर पे है, वो प्लेयर ना हमको हमारे भोजपुरिया जो शाहरुख खान है, रवि किशन, उनकी याद दिलाते हैं, वो है समार जोसेफ। अब रवि किशन भैया का एक डायलॉग था, जो कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ठीक है। तो समार जोसेफ ने ऑस्ट्रेलिया में जो हालत की है, ऑस्ट्रेलिया की गाबा में, हमारी नजर समार जोसेफ पे है। हमको लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए हुकुम का इक्का साबित होने वाले हैं। क्या समझे? बात तो सही है। Very rightly said. I mean, Delvin, just we'll talk a few minutes, just 2 minutes on Shamar Joseph. Like he said, he has been that X factor. He had been that X factor for West Indies, because it took them like almost 3 decades to win a test match in Australia, almost 3 or 4 decades. Yeah. And 3 decades. that guy broke his toe a day earlier, got his toe checked, came back, bowled the overs, got the whole of the Australian lineup out, and won the match for West Indies. I mean, is there any fairy tale story better than this? No, not really. You cannot ask for anything better for someone like Shamar in that situation. And of course, because he's young, he's just new. For him, everything is everything is basically a nothing to lose situation out there. He was not. The funny part is he was not actually supposed to come to the stadium on the final day. He was pushed by the team physio to just come. Even if you're not playing, you might as well support the side. But then he, like in his word itself, the physio did something, and here I am on the field. So from there, it was just one-way traffic. The dude just bowled constantly, and there is genuine hype about the guy. I want him to, just make sure that he's not rushed into things. He's not overbowled. He's not overloaded with a lot of player workload, as you can see with every new player. And more importantly is that he should not be blinded by the riches of the franchise cricket that has been going around. I mean, sure, play or fill a franchise cricket, because it's very difficult to deny yourself those pleasures when it comes to franchise cricket, especially with the money on offer that is there. But at the end of the day, that you could be a part of something special in that West Indian circuit. Like, that guy genuinely has the quality, and he genuinely has the skill set that is required to be, not only for Lucknow but for West Indies cricket in the future as well. Right. अच्छा मिश्रा जी, एक बात बताइए, अभी डेल्विन ने कहा कि फिजियो ने कुछ तो भी किया, तो आपके यूपी में भी कोई ऐसा काला जादू वाला चीज है क्या कि जो शमार जोसेफ के साथ हो गया कि अचानक से आखिरी दिन पे खेलने लगे? तो क्या आपके यहाँ पे कोई काला जादू होगा कि जो पिछले 2 बार से लखनऊ जो है प्लेऑफ में आके बाहर हो जाती है, तो इस साल शायद टाइटल मार दे? कुछ है ऐसा? अब हम तो एक ही चीज कहने वाले हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स को हर मैच के पहले एक खैनी खिला दो, हाँ है कि नहीं? खैनी खा के फिर वो भौकाल मचाएंगे।
पिच के ऊपर। अब एक तो जानकारी और दे दे, खैनी खाने के बाद पिचकारी ग्राउंड में नहीं मारेंगे क्योंकि भाई ऑलरेडी ड्यू रहेगा, तो सरकमस्टांस सिचुएशन खराब ना हो, ये बात का हम ध्यान जरूर रखेंगे। तो खैनी खाओ, मैच जीतो, समझे कि नहीं? क्लीन इंडिया इनिशिएटिव भी जो है वो मतलब साथ में चलना चाहिए। लाइक ग्राउंड गन्ना हो भैया, ग्राउंड गन्ना इलेक्शन का हो, माहौल है, ग्राउंड हरा है, हरा रहने दीजिए, नारंगी बनाने की जरूरत नहीं है, देश पहले नारंगी हो चुका है। बिल्कुल। हाँ होली आ रही है थोड़े दिन में, बट फिर भी कंट्रोल है ना, कंट्रोल योर इमोशन, मिश्रा जी की लैंग्वेज में कंट्रोल योर इमोशन। और भाई लोग एक तो बात और बोलना चाहते हैं, छोटी सी बात बोल रहे हैं। अब आप बुलाए हैं मिश्रा जी को अमेरिका से कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में कुछ बोले हैं। हमारे बड़े मिश्रा जी भी तो लखनऊ सुपर जायंट्स के हुक्म का इक्का है, 41 की उम्र हो गई है भाई। उनके लिए तो कई लोग बोलते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब बताओ 41 की उम्र में वो मेरे ख्याल से इम्पैक्ट प्लेयर बन के खेलेंगे, जिस मैच में जरूरत होगी 4 ओवर निकाल दें, निकाल दें। क्या बोलते हैं? बात तो सही है। I mean, I still can't digest this fact that guy is 41. He still doesn't want to retire. He's not as fit as Dhoni, but whenever you watch him play, he's like that youngster, 19-year-old youngster wants to play cricket. Whenever he sees the bat and ball in someone's hand and want to be involved in it. So it's a feel-good story with Amit Sharma. And also, it's not about a youngster. He's a one over-eager uncle in every cricket team that wants to play the game. He's a one over-eager uncle. He's lost all his talent, all his skill for the last 5 years or 6 years, but the enthusiasm is the highest among that guy only. And Amit Mishra is that guy for the Lucknow Super Giants. Like, he's like, bowling तो नहीं आती, but डाल देंगे, हाथ घुमा लेंगे हम। भाई डेलविन भैया देखो ऐसा है, मिश्रा है वो, ज्यादा बोलिए नहीं, बैठे हैं और पट्टा चलवा देंगे। माफी मांगो मिश्रा जी से, माफी मांगो। अच्छा मिश्रा जी एक बात बताइए। बोलिए। देखिए 2 मैच तो ये लोग लखनऊ में खेलेंगे ही खेलेंगे, ठीक है? 2 मैच तो ये टीम लखनऊ में खेलेंगे। आपका क्या मतलब इस पे टिप्पणी है कि जीतेंगे, कैसे खेलेंगे, क्या होगा? अभी देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स जैसा टीम 2 बार प्लेऑफ तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कारण कि आईपीएल में सबको पता है कि 3-4 टीमों का दबदबा होता है प्लेऑफ्स में खेलने का। जब भी बात होता है आईपीएल का, प्लेऑफ्स का, सेमीफाइनल, फाइनल का, तो भाई 3 नाम तो हमेशा दिखता है हमको, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स या आपका राजस्थान, अपना ये आरसीबी, विराट कोहली वाले भैया की टीम। अब उनमें गुजरात का आना, उनमें लखनऊ का एकदम से आ जाना और बैक टू बैक 2 सीजन अच्छा करना, ये हमको लगता है ये सीजन हमारा चांस बहुत बढ़िया है। हमको लगता है कि हम आगे पहुंचेंगे, और उसके लिए हमको लगता है जो सबसे अच्छी बात वो ये सीजन की बहुत चुन के टीम बनाई है। मीडियम पेसर्स बहुत अच्छे लिए हैं, स्पिनर्स के ऊपर सारा गेम है, क्योंकि स्लो पिच रहेगा लखनऊ का। मुझे नहीं पता कि क्यूरेटर भाई साहब ने पिच कैसी बनाई है, क्या तैयार किया है, बट हिस्टोरिकल डेटा देखें, आज 2 साल से देखें, पिच काफी स्लो होता है। स्पिनर्स के लिए, मीडियम पेसर्स के लिए काम आती है। और इनका टीम अगर हम देखें तो स्पिनर्स बहुत अच्छे भरे हुए हैं, और इनके पास वेरिएशंस वाले फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। इंटरेस्टिंग होगा, शमार जोसेफ फुल थ्रॉटल में जाते हैं, मतलब पूरी ताकत लगा के बॉलिंग करते हैं कि वो मिश्रण करते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडियन बॉलर्स जाने जाते हैं मिश्रण के लिए। ड्वेन ब्रावो को तो कोई भूल नहीं सकता है। उसके बाद इनके पास लॉन्ग हिटिंग करने के लिए भाई निकोलस पूरन जैसा बंदा है, स्टॉइनिस है, उनका कोई भरोसा नहीं, किसी मैच में 30 बॉल में 70 जड़ देंगे, भौकाल मचा देंगे। तो लेकिन एक तो बात का डर लग रहा है कि राहुल और डिकॉक ये अगर ऊपर नहीं चले तो सारा का सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ जाएगा, और मिडिल ऑर्डर में हमें लग रहा है कि एक बहुत बढ़िया सेट बैट्समैन की कमी लाइनअप में हमें दिख रही है। अब वो कोई भारतीय खिलाड़ी उभर के आ जाए हमारे रिंकू भैया जैसे, तो मजा आ जाए। तो मिश्रा जी आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सीजन ऐलान हुआ है कि केएल राहुल साहब ओपनिंग नहीं करेंगे, वो मिडिल ऑर्डर से ही खेलेंगे। तो आपका जो डर है उस विषय के प्रति, तो फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल वापस 4थे या 5वें नंबर से आके बल्लेबाजी करेंगे, जहां पे मिडिल ऑर्डर को बल मिलेगा
और जिस हिसाब से 50 ओवर के वर्ल्ड कप में खेले हैं मिडिल ऑर्डर से, ऐसा अगर वो फॉर्म आप आईपीएल में लेके आओगे तो शायद से लखनऊ को बहुत ही फायदेमंद हो सकता है ये सीजन, अगर राहुल जी अपना फॉर्म पकड़े रहे। वैसे उनका उन पे थोड़ा तो संदेह है कि फिलहाल थोड़े से चोटिल है, तो देखते हैं कि पहले ही गेम से वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बट ये बात तो जरूर है कि इस बार वो मिडिल ऑर्डर से खेलेंगे बल्लेबाज हमने द्वारा। जानबूझ के कहा था ये बात हमने जानबूझ के कही थी कि हम भी नहीं चाहते हैं वो ओपनिंग करें, कारण कि वो कप्तान है, ओपनिंग करते हैं जल्दी आउट हो जाते हैं तो मनोबल टूटता है। तो हमारी साजिश थी, आप पकड़ लिए, हम बहुत होनहार और होशियार आदमी हैं आप, तो बात तो मानना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में रहें, कारण कि प्रेशर बहुत है ना, कप्तान रहे तो क्या करें अब। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो डेल्विन ने कहा कि वर्ल्ड कप में जो केएल राहुल ने किया, देखो मिश्रा जी तो चाहेंगे कि वर्ल्ड कप वाले केएल राहुल ऐसा करे कि 4 बॉल थोड़ा डॉट करने का 5-6 बॉल से छक्के चौके मारे, पर दूसरे टीम के हमारे जो फैंस हैं तो ये बोलेंगे भाई तू 4-5 तू 20 बॉल लगा, 2 रन मार ताकि हम जीत जा भैया। तो मिश्रा जी उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो अगर ऐसा है, वर्ल्ड कप का फाइनल अगर याद करोगे और बोलोगे राहुल भैया की गलती है, केएल राहुल भैया इतना स्लो काहे खेले, समझ में नहीं आया, भैया छोड़ दो ना, गई वो बात। अभी इस साल नया सीजन, नई बात करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। अब शायद हमको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे, तो आने दो अच्छे दिन। Okay. Mishra ji is in full throttle, guys. He's in full throttle. He's in full, roast mode. Me and Delvin actually decided to roast Mishra ji, but it's happening the other way around. Mishra ji is roasting us a lot. Let's move on to the next section. The best part and the most difficult part of the recording, of this recording. Selecting the playing 11. मिश्रा जी क्या कहते हैं? अब आपने राहुल को तो नीचे शिफ्ट कर दिया, तो हम देवदत्त पडिक्कल को भेज दो ओपनिंग पे कि ना भेजे? अब भेज दो भाई, उनको क्या करेंगे भाई, भारत के उभरते हुए नौजवान हैं, अब खेल रहे हैं अच्छा, तो उनको जाने दो ऊपर। हमका ये लगता है कि निकलेस पूरन मिडिल ऑर्डर में रखना चाहिए, केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में रखना चाहिए, क्विंटन डिकॉक तो नो डाउट किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि वही ओपनिंग करेंगे, पडिक्कल साहब को भेज दो ऊपर। स्टॉइनिस भाई साहब ना, हमको समझ में नहीं आया आज तक वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि वो नंबर 5 नंबर 6 पे आए, राहुल के बाद आए तो ज्यादा अच्छा है, कि अगर राहुल नहीं चले तो वो शायद चल जाएं। बॉलिंग में शमार जोसेफ और नवीन उल हक के बीच में अगर चुनना है, क्योंकि रूल है कि 4 फॉरेन प्लेयर रखना है और इनकी बैटिंग लाइनअप में ही 3 फॉरेन प्लेयर चले जाएंगे, तो एक ही फॉरेन प्लेयर बचता है, इसका मतलब शमार जोसेफ नवीन उल हक में से किसी एक को चूज करना है। जब लखनऊ में मैच हो रहा होगा तो हम नवीन उल हक को चूज करना चाहेंगे, जब बाहर अवे ग्राउंड पे मैचेस होगा तो हम चाहेंगे कि भाई आप नवीन उल हक को खिलाएं, क्योंकि उनको आईपीएल का एक्सपीरियंस है, वो बाहर हर ग्राउंड पे जाके खेले हैं, तो पूरा प्रेशर समार पे ना आए। तो ये हमारी रणनीति, और फिर मिश्रा जी तो हमारे जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर बोल के परिस्थिति के हिसाब से आ जाए जब उनको आना है, जब जरूरत है, नहीं तो बैठे हैं बाहर से मनोबल बढ़ा रहे हैं हमारी तरफ। मिश्रा जी आपने बोला कि आप स्टॉइनिस को 5 या 6 नंबर में खिलाएंगे राहुल के बाद, तो इसका मतलब मैं ये समझू कि आपको कृणाल पांड्या पे इतना भरोसा है कि वो स्टॉइनिस के ऊपर आके भौकाल मचा सकते हैं? हमको पूरा भरोसा है कि कृणाल पांड्या कुछ नहीं करेंगे, स्टॉइनिस कर सकेंगे। तो फिर भी कह रहे हो कि स्टॉइनिस को नीचे लाए। देखो राजनीति में, अरे राजनीति नहीं तो आईपीएल है, किसी ना किसी का तो बलि चढ़ाना पड़ता है, किसी ना किसी को तो त्याग देना पड़ता है। ऐसे में मिश्रा जी आईपीएल और राजनीति में क्या ही फर्क है, सत्ता दोनों तरफ पलट जाती है। अच्छा मिश्रा जी ऐसा ना करे, कृणाल पांड्या को बाहर करके हम आयुष भदोनी को ला लें। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं, अब हम उनको उतना फॉलो नहीं किए हैं, कृणाल पांड्या को खिलाना लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि क्या बड़के भैया जो है वो कप्तान है, हाँ उनका बहुत बड़ा नाम है, तो वो प्रेशर भी बहुत आता है, हम बोले ना सबको संभाल के लेके चलना पड़ता है, और बात लखनऊ की है तो क्या है, यहाँ अदब से सारी चीजें करनी पड़ती है, हम गुंडागर्दी नहीं करते पहले। हाँ तो हम क्या करेंगे, हम कृणाल पांड्या और स्टॉइनिस को बोलेंगे पहले आप करते रहें, और वो दोनों पहले आप करेंगे, इधर से आकाश भदोनी अंदर घुस जाएंगे, मैच खेल के वापस आ जाएंगे, वो दोनों पहले आप करते रह जाएंगे।
Okay, Delvin, I mean, let's put it on an easier front for all the viewers right now, like the playing Yes, 11, yes. the predicted Yeah. playing 11. So I I mean, the think, floor is yours. yeah, I saw the opening pair, like Mishraji said, picks itself with Devdutt Padikkal and Quinton de Kock opening. At number 3, I'll have Deepak Hooda come in. Right. Makes a lot of sense because after two left-handers, getting in a right-hander obviously Right-hand. is a little bit, yeah, you get the combinations going then. Then at Right. 4, it'll be Nicholas Pooran. Number 5, KL Rahul. Number 6, Marcus Stoinis. Number 7, Krunal Pandya. So that's your 7. And then when you come to the bowling, then it's obviously you have your spinner, that is Ravi Bishnoi. Then when it comes to the pacer, you can have either one of Mohsin or Yash Thakur bowling in as your domestic pacer. It also fulfills the uncapped quota as well. So Right. anyone, not an issue, anyone between Mohsin and Yash Thakur. And then you have Naveen ul Haq and Mishraji, either Mishraji or Shreyas. No, that's not Shreyas Gopal, sorry. K Gautam, Krishnappa K. Gautam. Gautam. Any Yes. one of them, yeah. Right. So any one of them. So that's my predicted 11 for this season's IPL. For अच्छा the Lucknow मिश्रा Super जी, Giants. जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। इस बार आपने तो बोल ही दिया कि वो जो काला जादू वाला चीज खा के क्या लखनऊ जीतेगा कि नहीं जीतेगा, अबे कि प्लेऑफ पहुंच के वापस चला जाएगा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। भाई देखिए, योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा कल हो रही है, आईपीएल भी शुरू हो रहा है, तो योगी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, हम बोल रहे हैं लखनऊ के लिए अब की बार प्लेऑफ्स पार। समझे कि नहीं? क्या बात है। So guys, I guess this is it from this time, and I hope you guys enjoyed, and I hope and wish that you would want to see Mishra ji again on some trading podcast in near future with his all the Lucknowi style, because he's that character. And also you can go and follow him on Instagram where he has a page by the name Mishra ji Amerikawadi. So that's it, guys. Bye bye. Keep subscribing, keep liking, keep sharing, and keep commenting यार। IPL सीजन है, कुछ तो कर दो। मिश्रा जी जरा धमकी दे दो यार, जरा हेल्प नहीं करते। भाई देखो ऐसा है, ये चैनल को स्पोर्ट्स विद सरदार जी चैनल जो है एंड फ्रेंड्स, इनको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं तो सबको पट्टा पड़ेगा और कट्टा चलेगा। और फिर बोलिएगा मत कि हम वार्निंग नहीं दिए थे, कारण कि वार्निंग दे रहे हैं।